Please introduce yourself Like, in any language जिसमें आप comfortable हो. મારો કોડ XYZ છે. મારા એજ્યુકેશન બેકગ્રાઉન્ડની વાત કરું તો મેં બીટેક કમ્પ્યુટર સાયન્સ નિર્મા યુનિવર્સિટીમાંથી 2015માં પૂરું કર્યું છે અને ત્યાર પછી મેં 3 વર્ષ આઈટી કંપનીમાં જોબ કરી છે અને ત્યાર પછી 2019ની અંદર મેં જોબ છોડી રેઝિગ્નેશન આપીને અને હું સિવિલ સર્વિસ માટે પ્રિપેર કરું છું ત્યાં અને રિસેન્ટમાં 2020ના ડીવાસના રિઝલ્ટમાં મને સિલેક્શન કરું છું. Good. Okay, आपने बीटेक किया है, ठीक है? तो बीटेक और बीई में क्या फर्क होता है? બીટેક મતલબ લાઈક તમે ટેકનોલોજી એપ્લાય કરો છો. अच्छा. તમે જે શીખ્યું છે એજ્યુકેશન બેકગ્રાઉન્ડથી તમારા જે થિયરીથી તમે એ ટેકનોલોજીકલ લાઈક એ અપ્લાઇડ સાયન્સ જેવું તમે કહી શકો. જ્યારે બીઈ એ મોસ્ટલી થિયોરિટિકલ પાર્ટનું જ એઝ પર अगर માય मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स किया है बीई तो मैं थ्योरेटिकली काम करूंगा. પણ એમાં અપ્લાય પાર્ટ ઓછો આવે છે. अच्छा, उसको अच्छा. Good. आपने बीटेक कंप्यूटर किया है, ठीक है ना? और आपने आईटी में काम किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. कंप्यूटर और आईटी में डिफरेंस क्या होता है? કમ્પ્યુટરમાં છે ને તમારે હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર બંને સાથે ડીલ કરવાનું હોય છે, જ્યારે આઈટીમાં છે તમારે મોસ્ટલી હાર્ડવેર સાથે ડીલ કરવાનું હોય છે. हार्डवेयर गलत बोला आपने. સરી હા, તો આઈટીમાં તમારે ખાલી સોફ્ટવેર સાથે ડીલ કરવાનું. अभी साइबर सिक्योरिटी न्यूज़ में से है, तो क्या जानते हैं आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में? સાયબર સિક્યોરિટીનો મતલબ છે કે લાઈક આપણે જે સોશિયલ નેટવર્કિંગ છે કે આપણે જે પણ ઓનલાઈન થ્રુ આપણે કંઈ પણ એક્સેસ કરીએ છીએ આપણે એને એક્સટર્નલ થ્રેટથી આપણે એને પ્રોટેક્ટ કરવાનું છે. જેમ કે અત્યારે હાલ પેગેસસ વાયરસવાળું સ્પાયવેરવાળું ચાલી રહ્યું છે કે પેગેસસની અંદર એક હાલમાં કરન્ટલી લાઈક મિનિસ્ટર્સ અને ગવર્મેન્ટ ડિવાઇસીસને અફેક્ટ કરી રહ્યું છે. તે લાઈક એ સાયબર વન કાઇન્ડ ઓફ સાયબર અટેક છે, તો આપણે એનાથી પ્રોટેક્ટ કરવાનું છે. ठीक है. तो साइबर जो है वर्ड, उसका मतलब क्या होता है साइबर का वर्ड? સાયબરનો વર્ડનો મતલબ મને નથી ખબર. तो फिर आपने बोला सिक्योर करना है, तो साइबर- साइबर सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिंग साइबर. तो व्हाट इज साइबर? બટ એ હું સાયબર મતલબ સમજી મતલબ મારા અકોર્ડિંગ છે કે ઇન્ટરનેટનું જે બી ઇન્ટરનેટ થ્રુ આપણે જે પણ એક્સેસ કરીએ છીએ એ સાયબરનું લિટરલ મિનિંગ મને નથી ખબર. अभी जैसे पेगासस का आपने कहा, तो केस आया है कि पेगासस से स्नूपी का केस आया है, ठीक है ना? तो उससे प्राइवेसी का वोलेशन है. प्राइवेसी क्यों रिक्वायरमेंट है हमारे लाइफ में? क्यों रिक्वायरमेंट है प्राइवेसी? પ્રાઇવસી એટલે કે છે સપોઝ હવે અત્યારે પેગેસિસ આવ્યું છે, હવે આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન સપોઝ કે મિનિસ્ટર્સની એક્ટિવિટી છે એના પર મોનિટર કરશે, તો આપણે ઇન્ટરનેશનલ લાઈક આપણે નેશનની સિક્યોરિટીનો થ્રેટ છે. એ સિવાય પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન હોય સપોઝ લાઈક એ મારું કે તમારા ડિવાઇસને એક્સેસ કરતું હોય કે તમારું નામ છે, તમારું જેન્ડર છે, તમારી લાઇકિંગ શું છે, તમે કોઈ કઈ પોલિટિકલ પાર્ટીને ફોલો કરો છો, કાં તો પછી તમારે હેલ્થનું શું છે, હેલ્થનું સ્ટેટસ શું છે, તમને કોઈ બીમારી છે કે નહીં, એ બધી વસ્તુનું લાઈક એ લોકો ટ્રેક રાખતા હોય છે અને એ આપણી પર્સનલ સિક્યોરિટીને પણ અફેક્ટ કરે છે અને નેશનની સિક્યોરિટીને પણ અસર કરે છે. तो मैं कन्विंस नहीं हुआ, मेरे को थोड़ा और अच्छे से आप समझाओ. हाँ, जैसे देखो कोई मेरा फोन हैक करेगा, मेरा सारा इन्फॉर्मेशन उसके पास चला गया, उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? मैं तो मैं कर रहा हूँ नहीं. I'm not talking about मिनिस्टर, बड़ा ऑफिसर, एक कॉमन मैन. अब मेरा कोई फोन हैक कर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? સપોઝ તમારા ફોનની અંદર તમે સપોઝ ઈ કોમર્સ વેબસાઇટ યુઝ કરો છો, બરાબર, તો એના પરથી તમને એ ટ્રેન્ડ ખબર પડશે કે તમને કઈ વસ્તુ ગમે છે, પછી કદાચ તમારો ગૂગલનો ટ્રેક રાખે તે ખબર પડશે કે તમે શું વસ્તુ સર્ચ કરો છો, તમને શેમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. તો સપોઝ કોઈ બહારની એમએનસી છે, મલ્ટીનેશનલ કંપની છે, એને ઇન્ડિયાનો રેકોર્ડ મળી જાય છે કે ઇન્ડિયાના આ લોકો છે, લાઈક તમે છો, એવા ઘણા બધા યુઝર્સનો ડેટા એમની પાસે હશે, તેમને ખબર પડશે કે આ બધાની હેલ્થ હેબિટ આ છે, આ બધી સર્ચિંગ હેબિટ આ છે, તો એ લોકો એવા સોફ્ટવેર બનાવશે જે આપણને ગમશે. अच्छा, मेरे को बताओ, ये एक एंड्रॉइड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में और एक iOS होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस मेरे को टेक्निकलिटी इतना नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि दोनों अलग अलग कंपनी के अपनी अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम है और दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म सपोर्ट करते हैं. से मैं आपके पास आता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे अपनी कंपनी के लिए एक वेबसाइट बनवाना है, तो आप कैसे अप्रोच करेंगे? जीरो से मेरा वेबसाइट कैसे बना के देंगे आप? सबसे पहला तो मेरा क्वेश्चन यही होगा कि
रिक्वायरमेंट क्या है, ओके ठीक है। तुम्हारी रिक्वायरमेंट जैसे कि सपोज रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि अब तुमको सपोज कोई शॉपिंग वेबसाइट बनानी है, तो मैं पहले ये पूछूंगी तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका डिज़ाइन करवाएंगे, लाइक बेसिक फ्रेम प्रिपेयर करवाते हैं कि ये इनका रिक्वायरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग हमने बेसिक फ्रेम बनवाया, तो बेसिक फ्रेम हम आपको दिखाएंगे फिर से एज अ प्रेजेंटेशन कि तुमको पसंद आया कि नहीं। अगर वो पसंद आया तो उसके बेस पे कॉस्ट और उसके अकॉर्डिंग हम टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करेंगे। अगर तुम जिसके अकॉर्डिंग बजट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट होती है, और उस टेक्नोलॉजी के बेस पे हम लोग फर्दर डिज़ाइनिंग का सबसे पहला फेज होता है कि जो हम लोग लेआउट दिखाते हैं, डिज़ाइनिंग के बाद हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, बैकएंड कनेक्शन करते हैं और इनिशियली 1-2 पेज का डेमो दिखाते हैं कि तुमको ये पसंद है कि नहीं, और उसके बाद हम रेगुलरली कॉल करके उसको हैंड ओवर करते हैं। तो इसमें कहीं पे डोमेन नेम आया नहीं, इसमें Domain होस्टिंग name- कहाँ लेना है ये तो आप मुझे बताओगे ना। डोमेन नेम और होस्टिंग का कब आता है, जब हम उसको लाइव करते हैं एप्लीकेशन को, जब उसको यूज़ करना स्टार्ट करना होता है, तो डोमेन नेम हमको खरीदना पड़ता है। तो ये तो आप कस्टमर को बताओगे ना, मुझे एडवाइस करोगे हाँ, कि आप वो- डोमेन सोच के रखो, होस्टिंग का भी आप मुझे बताओगे, है ना? होस्टिंग का तो वो हम लोग हमारी साइड से ही होता है होस्टिंग का। मतलब तुम्हारी सपोज गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तुमको सिक्योरिटी का ज़्यादा कंसर्न रखना पड़ता है। सपोज कोई नॉर्मल शॉपकीपर है तो उसको सिक्योरिटी का इतना थ्रेट नहीं होता है, तो उसका हम अगर कम सिक्योर सर्वर पे हम उसको होस्ट करते हैं तो चलता है। लेकिन अभी हम लोग को गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है तो हमको ज़्यादा सिक्योर उस सर्वर पे होस्ट करना पड़ता है। अभी आप देखो कि वर्ल्ड की 4 बिग कंपनी, फेसबुक, गूगल, अमेजोन, एप्पल, ये सब यूएस ओरिजिन की है और ये कंप्यूटर आईटी बेस्ड कंपनी है, तो क्यों इंडियन कंपनी इनके साथ कम्पीट नहीं कर पाती है? टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा क्यों उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाती है? नहीं, ऐसा तो नहीं कम्पीट नहीं कर पा रही है, क्योंकि टीसीएस और विप्रो और इन्फोसिस ये काफ़ी बड़ी एमएनसी तो आप और उसको गूगल के साथ कंपेयर कर सकते गूगल के साथ कंपेयर नहीं करें, बट दे आर प्रोग्रेसिंग, मतलब वो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कम्पीट नहीं कर तो मेरे सकते। को मतलब टीसीएस और गूगल के बीच में देखना है कि विच इज द बिग कंपनी, कौन सी बड़ी कंपनी है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहली थिंग है कि गूगल का क्या है कि वो जो पैकेज विच इज बिग कंपनी, गूगल और Google. टीसीएस? सो हाउ विल यू से कि टीसीएस कम्पीट कर रहा है गूगल के साथ? कम्पीट नहीं कर रहे, बट हम प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम कर नहीं प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, आई एम नॉट आस्किंग फॉर प्रोग्रेस, आई एम सेइंग अबाउट व्हाई वी आर नॉट बिग 4 कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। मुझे अब मतलब रिसेंट मतलब लाइक अभी मेरे को स्ट्राइक हो रहा है कि जैसे कि टाटा है, टीसीएस है, तो उसका लाइक बहुत सारे फील्ड में उसका एक्सपोजर है, मतलब बहुत सारे फील्ड को एक साथ लेके वो चल रहा है, तो शायद मे भी वही रीज़न हो सकता है। ये Google- इन्फोसिस तो सभी कोई भी है। हाँ, इन्फोसिस वही फील्ड है, पर लेकिन इन्फोसिस का मेन वो है कि इन्फोसिस इंडिया के अंदर ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रही है, वो ज़्यादा इंडिया के बाहर कम एक्सपोर्ट कर रही है, शायद वो रीज़न हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट Computer engineer cho bento મને ખાલી URL HTTP HTTPS મને કાંઈ ખબર નથી, મને લેમેનને સમજાય એવી રીતે સમજાવો. What is URL, what is HTTP and what is HTTPS? URL લાઈક આપણે જ્યારે કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન ચાલુ કરીએ છીએ, ક્રોમ બ્રાઉઝર કે તમે કોઈ ખોલ્યું, એની ઉપર જે નોર્મલ સ્ક્રોલ બારમાં તમને જે દેખાય છે ને એ URL છે, લાઈક તમને દેખાય છે www.google.com, આ એક URL છે, મતલબ દરેક એની પાછળ એક આઈપી હોય છે, પણ સામાન્ય માણસને ખબર ના પડે કે શું છે, એટલે એને એક નામ આપવામાં આવે છે, જે છે એ આપણે કહીએ છીએ ડોમેઇન નેમની સાથે, એટલે જે આખો આપણને દેખાય છે ને URL આવે છે, બરાબર. હવે HTTP શું છે, તો એક પ્રોટોકોલ છે સિક્યોરિટી માટે, એમાં સૌથી વધારે સિક્યોર પ્રોટોકોલ છે HTTPS, જે પાછળ S છે એ દેખાડે છે કે આપણે વધારે સિક્યોર પ્રોટોકોલ યુઝ કરે છે સર્ચિંગ અને લાઈક આપણી વેબસાઇટને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે. એની માટે આપણે સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરાવવું પડતું હોય છે મતલબ રિલેવન્ટ ઓથોરિટી પાસે. વહીવટની અંદર તમારું કોમ્પ્યુટરનું જે ટેકનોલોજીનું જ્ઞાન છે એ ક્યાં ક્યાં ઉપયોગી થઈ શકે એમ છે? જો તમે સિલેક્ટ થાઓ વહીવટમાં તો ક્યાં ક્યાં હજી પણ ઉપયોગ થાય જ છે એવું નથી, પણ હજી પણ ક્યાં ક્યાં વધારે સારી રીતે ઉપયોગી થઈ શકશે? આપણે બ્લોકચેન ટેકનોલોજી તો બધે સાંભળ્યું જ હશે, લાઈક જેટલી બી સપ્લાય મેં ચેન નથી સાંભળ્યું. Okay. આપણે સાંભળ્યું છે, મેં નથી સાંભળ્યું, મને ખબર નથી. કે બ્લોકચેન ટેકનોલોજી એવી છે ને કે અત્યારે હાલ રિસેન્ટ વધારે શું કહેવાય એવું કહેવાય છે કે ફ્યુચર બ્લોકચેન ટેકનોલોજીનું હશે. એમાં એવું છે કે એક ડિસેન્ટ્રલાઇઝ ફોર્મ ઓફ લાઈક ડિવાઇસનું કનેક્શન થતું હોય છે, અને એ ટેકનિકાલિટી નથી વધારે સમજાઈ શકતી, પણ એવું કહેવાય છે કે સૌથી વધારે સિક્યોર છે અત્યારે
સપોઝ તમારે જ્યારે સપ્લાય ચેઇન મેનેજમેન્ટની વાત કરવી હોય, સપોઝ કે તમારે ફાર્માનું જે આપણે બલ્ક લઈને આખું સપ્લાય થતું હોય છે મેડિસિનનું, તો એ બધા કેસની અંદર લાઈક તમારે વચ્ચે ડેટા છે ને આડાવડા ના થઈ જાય. સપોઝ એ જગ્યાએ ડેટા ચેન્જ થશે ને તો એ આખી સિસ્ટમમાં રિફ્લેક્ટ થશે. લાઈક બધા પાસે પોતપોતાનો કંઈક ડેટા બ્લોક હશે જે એવું ચેન્જ નથી કરી શકતા, પણ તું જોઈ શકે છે ને ચેક કરી શકે છે કે કોઈ કંઈ ચેન્જ કર્યું છે કે નહીં. સેમ વસ્તુ લાઈક આપણે પીડી સિસ્ટમમાં અપ્લાય કરી શકીએ છીએ. પીડી સિસ્ટમ આપણે જ્યારે સેન્ટરમાંથી આપણને ફૂડ ગ્રેન્સ જ્યારે અલોકેટ થાય છે એ પછી સ્ટેટ પાસે આવે છે, સ્ટેટ અને ડિસ્ટ્રિક્ટમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે છે, ડિસ્ટ્રિક્ટ અને લાઈક જિલ્લા લેવલ પર, જિલ્લા પછી ગ્રામ્ય લેવલ પર જાય છે. તો એ આખો આપણો ચેન જે છે આપણે બ્લોકચેન, હા, તો આપણે બ્લોકચેનના મારફતે એને જો સ્ટોર કરી રાખીએ ને તો ત્યાં જે લીકેજીસ થાય છે વચ્ચે કે લાઈક આપણો ડેટા આપણે ટ્રેક નથી રહેતો કે ડેટા ક્યાં ગયો છે, ક્યાં ફૂડ ગ્રેન્સ જતા રહ્યા છે, આટલા આખા પાછળ થઈ ગયા છે. તો સપોઝ કોઈ જગ્યાએથી ચેન્જ થશે ને આખી ચેનને ખબર પડશે કે અહીંયાથી ડેટા ચેન્જ થયા છે ને એ ચેન્જ આખી સિસ્ટમમાં રિફ્લેક્ટ થાય છે. તો લાઈક એક્ઝેક્ટ ટેકનિકાલિટી કેવી રીતે તો લાઈક તમારે એકદમ ગ્રાસરૂટ લેવલ પર પ્રોસ્પેક્ટ કર્યા પછી ખબર પડે, પણ આ હું એપ્લિકેબિલિટી એની સમજું છું. અચ્છા, તો ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવાથી ઘણું બધું ફરક ચેન્જ પડી કરી, શકે. હા. અને કોઈ થ્રેટ્સ કોઈ નથી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગના થ્રેટ્સ કોઈ નથી. સાયબર અટેક, હા, સાયબર અટેક છે, પછી ડિજિટલ ડિવાઇડ છે. હા. પછી તમે જે વાત કરી કે પબ્લિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ, હા, એમાં તો આ બધું હોવા છતાં બહુ મોટો કોમ્પ્લેક્સ છે. લાઈક એવું લાઈક આ પબ્લિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ બી આ ટેકનોલોજીકલ વાઇઝ બી ઇફેક્ટિવ ત્યારે જશે કે જ્યારે આપણે બધા લેવલ પર છે ને મશીન વાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હશે. જ્યાં માણસ ઇન્ટરફેર કરશે ને ત્યાં કરપ્શન તો થોડું ઘણું તો રહેવાનું છે. લાઈક આપણે કહીએ છીએ ટેકનોલોજી અપ્લાય કરવી પડે, ફૂલ પ્રૂફ નહીં થાય જ્યાં સુધી લાઈક આપણે ઇન્ટરમીડિયેટ લેવલ પર જ્યારે મશીન થ્રુ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થતું ને, બાકી અધરવાઇઝ જ્યારે પછી જો મશીન જ ગોઠવી દેશું તો પછી નોકરીની જરૂર નથી, તો તમને સર્ટિફિકેટ નિમવાની પણ જરૂર નથી ને. નથી તો લાઈક એ એપ્લિકેબિલિટી છે પણ અમુક એક્સપિરિયન્સ સુધી છે. આપણે જે વિચાર છે કે કમ્પ્લીટ બધું જ એકદમ ફિઝિબલ કરી નાખશે, આપણી માટે બહુ ઇઝી કરી નાખશે, તો એવું બી નથી. બીજું વહીવટની અંદર આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એની શક્યતાઓ શું છે? આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનું એક એક્ઝામ્પલ હું આપું તો આંધ્રપ્રદેશ ગવર્મેન્ટ છે, એ લોકોએ છે ને એ લોકોના જે સ્ટુડન્ટ સર્વેલન્સ સિસ્ટમ છે ને એમાં એ લોકો યુઝ કરે છે. સ્ટુડન્ટ સર્વેલન્સ સિસ્ટમની અંદર એક તો સ્ટુડન્ટની જે છે ને અટેન્ડન્સ રેશિયો છે, અટેન્ડન્સ છે એ લોકોએ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ થ્રુ કરે છે. એ સિવાય ડ્રોપ આઉટ રેટ ને બધું છે એ બધું એટલું કન્ટિન્યુઅસ મોનિટરિંગ છે ને એ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ થ્રુ કરે છે. તો આપણે સેમ વસ્તુ એગ્રીકલ્ચરમાં અપ્લાય કરી શકીએ છીએ. એગ્રીકલ્ચરમાં આપણે આ સર્વેલન્સ સિસ્ટમ એવી ગોઠવી શકીએ છીએ કે જે આપણા માટીની ગુણવત્તા છે એ આપણને ચેક કરી આપે. આપણને સમયે કે અત્યારે પાણીનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, હવે પાણીની જરૂર છે, હવે બીજનો ટાઈમ થયો છે, અત્યારે બીજ વાવવાની જરૂર છે, હવે લર્નિંગનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. તો એ આપણને એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરમાં બી યુઝ થઈ શકે છે. સેમ વસ્તુ ગવર્નન્સ સેક્ટરમાં બી લાઈક બધા સિસ્ટમની અંદર મોનિટરિંગ કરવામાં હેલ્પ થઈ શકે છે. अगर मैं पूछूंगा नहीं तो आप मेरे पास देखेंगे ही नहीं. मैं पूछता हूँ कुछ आपको. आप ब्लॉकचेन और आंध्र प्रदेश कह रही थी, आंध्र प्रदेश ने ब्लॉकचेन में काम किया है, क्या किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने? अच्छा, ये स्पाईवेयर, मालवेयर, वायरस ये सब क्या होता है? आप लोग का बहुत डिस्कशन चल रहा है, क्या है ये? मालवेयर का मतलब होता है कि मलिशियस सॉफ्टवेयर. वही सॉफ्टवेयर ही होता है लेकिन वो गलत काम के लिए बनाया होता है, दैट इज उसको मलिशियस सॉफ्टवेयर बोलते हैं. स्पाईवेयर मतलब होता है कि हमारी परमिशन के बिना वो हमारे डिवाइस में एंटर होता है और हमारी लाइक हम स्क्रीन के अंदर क्या काम कर रहे हैं, हमारा वीडियो कॉलिंग हो रहा है, हम किससे बात कर रहे हैं, हमारी डिवाइस में हम किससे चैट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो स्पाईवेयर हमारी परमिशन के बिना कर रहा है. और वायरस में ऐसा होता है कि लाइक हमको कोई मेल आता है और हमको बोलता है कि इस पर तुम क्लिक करो और फिर तुमको वो इनडायरेक्टली हमारे मशीन में कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है, वो वायरस होता है. और पेगासस जो है वो अभी स्पाईवेयर है कि वो लाइक नॉर्मल फोन कॉल आता है और डायरेक्टली हम लोग रिसीव भी नहीं करते और हमारे परमिशन के बिना वो हमारे सिस्टम में एंटर होता है. तो ये वायरस अगर ऐसा होता है जो फाइल के थ्रू आता है और हम ओपन करते हैं फिर वो पूरा सिस्टम में चला जाता है, ये कोविड-19 को वायरस क्यों कह रहे हैं? वो वायरस पूरा अलग है. क्या है? तो क्या हमारा दोनों वायरस तो नाम नहीं, सेम ही है. वो सिस्टम का वायरस है और ये ह्यूमन का वायरस क्यों? है. कोई आपको लिंक नहीं नजर आता? क्या है? वायरस मतलब अगर लिंक का अभी बताऊं तो जो म्यूटेट होता है ना वो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है.
ये वाला वायरस भी अपने आप इंटेलिजेंस क्रिएट करता है और ज़्यादा बड़ा रूप ले लेता है, और ये अभी कोरोना वाला भी सेम हो रहा है कि वो अपने आप चेंज म्यूटेशन होते हैं वो तो ठीक है, पर वायरस, दोनों को तो वायरस कहते हैं, क्या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है? वो नेगेटिव वायरस इफेक्ट क्या? करता है दोनों चीज़ों को, हमारी ह्यूमन बॉडी को नेगेटिव इफेक्ट करता है, वो सिस्टम को नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, इसलिए इसको भी वायरस कहते हैं, उसको भी वायरस कहते हैं। एज पर माय नॉलेज। हाँ, अच्छा, ओके ओके। अच्छा, आपका क्या जम्पशन है कि करो ये जो कोविड-19 ये वायरस है, ये क्या है? ये नेचुरली ऑकर हो रहा है या ये लैब में बना हुआ है? लैब में बना हुआ उसका तो हमारे पास भी कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट की वजह से हो रहा है। जो हम लोग डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, इस वजह से जो फॉरेस्ट से जो वायरस ओरिजिन हो रहा है, जैसे कि पहले इबोला था, कैनासोर वायरस था, ये सारे जो जंगल में से ओरिजिन हुए हैं, तो उस फॉर्म का हम बोल सकते हैं कोरोना का भी ओरिजिन ऐसा हो सकता है। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है अभी। ओके, मतलब डिफोरेस्टेशन होता है तो उससे वायरस निकलते हैं। डिफोरेस्टेशन होता है जिससे मतलब जो जंगल में जो रहते हैं ना वायरस वगैरह, जो भी कुछ वायरस होते हैं जो सारे हार्मफुल नहीं होते, जो ह्यूमन बॉडी को हार्मफुल होते नहीं नीचे। ओके, हाँ बोलिए बोलिए, मैं हाँ, तो समझ गया। वो जंगल से भी ओरिजिन होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका इतना सोर्स रहता नहीं है, तो फिर वो आते ह्यूमन की तरफ फिर। ओके ओके, तो ये भी एक रीजन ऐसा ही एक वायरस हो सकता है। हो सकता है, बिकॉज हमारे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है कि इसका ओरिजिन है। अच्छा, जैसे वायरस को कंप्यूटर में मारने के लिए ये लोग एंटीवायरस करते हैं, तो ऐसे ही ये वैक्सीन है, ऐसे समझे हम? हाँ, तो ये वैक्सीन कैसे बन रही है? वैक्सीन में क्या होता है? वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा मतलब जो एक्चुअल वायरस होता है ना, मेरे को मुझे एक फॉर्म पता है जो किड फॉर्म के अंदर डालते हैं। उसमें तो कहते हैं कि जो एक्चुअल वायरस होता है वो वायरस को वीक कर देते हैं और उसकी वैक्सीन बनाने आते, सो दैट कि वो जब बॉडी के अंदर वीक फॉर्म में जाता है तो कुछ दिनों के बाद वो एंटीबॉडी डेवलप करने लगता है अपने आप से। कैसे करता है पर ये मैं समझा नहीं। सपोज हमारे पास अभी कोरोना का वायरस है, उसको हम उसको वीकर फॉर्म में क्रिएट करते हैं। ओके वो वीकर फॉर्म में क्रिएट करने के बाद हम उसको ह्यूमन बॉडी में अंडर करवाते हैं, क्योंकि वो वीकर फॉर्म में होता है, इसलिए बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर देती है और उसको पता चल जाता है कि भाई ये अटैक हुआ है हम पे इंटरनल बॉडी को, वो एंटीबॉडी डेवलप करना स्टार्ट कर देती है। ओके ओके, तो बेसिकली वैक्सीन मतलब वायरस इंजेक्ट कर वायरस रहे हैं। से इसीलिए तो हमारे पास वो है ना पोलियो का वो आ रहा है, वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो हो रहा है। ओके ओके, परफेक्ट। आप 3 साल आईटी में काम कर चुके हैं, किस कंपनी में काम किया आपने? मैंने 1.5 साल कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन में काम किया पुणे, और 1.5 साल अहमदाबाद में काम किया तत्वसॉफ्ट टेक्नोलॉजी। ओके ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के आप यहाँ आई थी, हाँ, और इसे भी छोड़ के आप जीपीएससी करना चाहते हैं, ये यूपीएससी भी करेंगी? नहीं, मैंने स्टार्टिंग प्रिपरेशन मेरी यूपीएससी से की थी, तो मीनवाइल मैंने बीच में जीपीएससी दिया और मेरा हो गया, तो मैं यूपीएससी के लिए पढ़ रही हूँ। ओके ओके, सो नेक्स्ट स्टेज इज यूपीएससी। ठीक है, डन डन डन, थैंक यू। પહેલો ભૂલ શું કરી અમને કહેતા હતા ત્યારે ને તમે તુમ તમારી तुम्हारी તુમ તમારી આ તો બહુ ખરાબ એટલે આ તો બેન બિલકુલ એવોઇડ કરતો આ અહીંયા આગળ આપણે શેરીમાં નથી બોલતા हाँ हाँ, કે તુમ તમારી लाइक वो बड़ी लैंग्वेज स्विच कर देते ना, એટલે થોડું नहीं तो आप जिसमें कंफर्टेबल उसी में હા જેમાં કમ્ફર્ટેબલ પણ क्वेश्चन उसी में ઇવન ગુજરાતીમાં તમે તો ગુજરાતીમાં પણ બેટા એમ કીધું અને હિન્દીમાં તમારી આ તો आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे बोलते हैं? मंत्री श्री, मतलब हाँ। ऑनरेबल, हाँ। है ना, ऐसे वर्ड यूज करते हैं। वहाँ तो बात है। आपको कैसा लगा आपका इंटरव्यू? ठीक, मतलब मैंने पहले ही क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दी थी, मतलब लाइक पता होने के बावजूद वो गड़बड़ी थी, टेक्नोलॉजी और बीटेक, मतलब वो तो नॉर्मल चीज़ सबको पता ही होती है। क्योंकि आप देखो आपने ग्रेजुएशन किया है, फिर आपने काम किया है, तो एक क्वाइट एक्सपेक्टेड है कि आप एक्सपर्ट की तरह बोलेंगे ना। आप मैं किसी बीकॉम वाले से એમએસસી વાત આમ કરી શકાય हाँ, मैं किसी बीकॉम वाले से पूछूं तो वो भी ब्लॉकचेन के बारे में ऐसी बात करेगा जो जनरल में आप बोल रहे थे। यू शुड बी मोर कंसर्न अबाउट टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ दैट। तो टेक्निक मतलब मैं अगर ज़्यादा टेक्निकल बोलूँगी तो सामने वाले को नहीं, पता हो तो जरूर। यही तो चैलेंज है ना, टेक्निकल मीन्स लेमैन को समझ में आए।
लेमन को जैसे मैं साइबर मैं तो મારે ઇન્ટરવ્યુ કરવું પડ્યું કે આપણે ખબર હશે મને ખબર કે આપણે કઈ મિત્રો છીએ કે તમને ખબર હશે આપણે વોટ આપણે નોટ આપણે अब देखो जैसे साइबर सिक्योरिटी है ना, हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर साइबर वर्ल्ड को सिक्योर करते हैं। साइबर वर्ल्ड क्या है? योर हार्डवेयर, योर सॉफ्टवेयर, योर डेटा, योर नेटवर्क, ये चारों साइबर वर्ल्ड है। अगर आपको याद हो तो पुराने टाइम पे हम साइबर कैफे में जाते थे, घर पे कंप्यूटर नहीं होता था, साइबर कैफे में इंटरनेट होता था, वहाँ पे नेटवर्क हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे आपको MS वर्ड पे रिज्यूम बनाना है तो सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये चारों का कॉम्बिनेशन है साइबर वर्ल्ड। और साइबर वर्ल्ड में अगर डेटा ब्रीच होता है या आपके हार्डवेयर को मालफंक्शन कर दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब कर दिया जाएगा, नेटवर्क को डिस्टर्ब कर दिया जाएगा, ये हुआ साइबर वर्ल्ड। वेरी बेसिक है एंड दिस यू आर एक्सपेक्टेड ना, ये तो आना चाहिए। तो देखो एक तो है कि आपको जो है ना आपका हैंड शेक कर रहा था स्टार्टिंग में, नर्वस फील कर रहे थे आप? नहीं, वो मुझे आदत है इसलिए मैं मतलब मैंने जो ट्राई किया है कि मैं कंट्रोल करूँ। अच्छा, तो ऐसे करके आप है ना बोलने में ऐसे हाथ यूज कर नहीं, सकते वो डरना वाला नहीं होता। अच्छा, ऐसे होता है, ठीक है। फिर ये जो कभी कभी जैसे कुछ रिपीटेड कोई क्वेश्चन पूछे ना तो आपका ऐसे जर्क आता है, जैसे मतलब ऐसे है ना, आप शेक कर रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि दिस इज मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो किसी ने पूछ लिया ना, ऐसे मत करना। मतलब मुझे समझ नहीं आया। जैसे किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है ना और आपको लगता है वो नहीं आता, ऐसे आपको रिस्पॉन्ड होता है ना, वीडियो देखना। नहीं, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसे किया है। नहीं, ऐसे दो तीन बार आपने किया, वीडियो देखना तो ऐसा लगता है कि यू आर इरिटेटेड, या क्या सेम चीज़ बार बार पूछ रहा है, या क्या ये इसी चीज़ बार बार पूछ रहा है, ऐसा शायद लगता होगा। दूसरा, आप रोटेट बहुत कर रहे थे है ना चेयर, तो इतना फ्रीक्वेंट ठीक नहीं है रोटेट। फिर सर बहुत ज़्यादा एजिलिटी भी अच्छी है। फिर आई कॉन्टेक्ट आप सबके साथ करना, जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके साथ अपनी तरफ तो जो ही लो अरे मैंने थोड़ा दूर भेजे थे। हाँ ऐसे तो ही है। फिर आप क्या कर रहे थे पता है? आप शुरू से जब अभिनव इनको जब आंसर कर रहे थे आंसर, आप देख तो नहीं रहे थे हमारी तरफ, बट आप ये इंश्योर कर रहे थे कि हम लोग आपकी तरफ देख रहे थे। तो आपका आई ऐसे घूम मतलब आई घूमेगा, आपका आई घूमेगा, सो दैट इज नॉट एन आई कांटेक्ट। फिर ये हुआ, फिर एक बार कुछ हुआ था तो आपने टंग निकाल दिया था, शायद सर ने कुछ पूछा तो याद नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। तो ये तो हो गया ओवरऑल बॉडी वाला पार्ट। आप फिर जिस दिन इंटरव्यू है ना उस दिन ड्रेस आप कुछ लाइट कलर का ड्रेस पहन के जाना, ये डार्क कलर मतलब का ठीक नहीं लगता है तो पर ब्लैक तो अवॉइड करना, ब्लैक हाँ, तो कोई लाइट कलर का ही पहन के जाना, बाकी ड्रेस आपने जो कैरी किया वो ठीक है। दूसरा नॉलेज है ना, मेरे को लगा कि थोड़ा आपका शैलो नॉलेज है, और नो डाउट आपको टेक्निकल पता होगा नहीं पता होगा ये मुझे नहीं पता, बट मतलब यहाँ तो जो कन्वेयर हुआ तो लगता है शैलो है। सिंपल है ना ये, जैसे एंड्रॉइड और iOS ये सब थोड़ी दो कंपनी का है ना, कुछ तो डिफरेंस होगा ना उसके अंदर, टेक्निकली कुछ तो डिफरेंस होगा। अब वेबसाइट पे आपको बनाने आता है तो सिंपल आपसे पूछोगे कि अच्छा डोमेन क्या रखना है, ठीक है मैं रजिस्टर कराती हूँ, आपको होस्टिंग कहाँ रखना है, कौन सा होस्टिंग रखना है, अच्छा आप कौन से लैंग्वेज में वेबसाइट बना रहे हो, आपको PHP बनाना है, किस HTML बनाना है, किस बनाना है, वो तो आप बताओगे ना। मैं फॉर्मेट बता दूंगी, मैं लेआउट बता दूंगी, इसको रिक्वायरमेंट पूछ दूंगी, वो बता नहीं, देगा। डोमेन वगैरह लास्ट में पूछा जाता है, सर आपका कोई इनिशियल फेज ठीक है। नहीं होता है। ठीक है चलो वो भी बता दो, लेकिन आप लैंग्वेज तो बताओ ना कि जैसे नहीं, वो मैंने टेक्नोलॉजी वाला बोला था ना कि डिजाइनिंग के बाद हम लोग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट पर करते ये तो जनरल हुआ ना, जैसे कि अब सपोज किसी को कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कुछ भी नहीं पता, वो भी तो यही बोलेगा ना। ये तो मैंने तो जनरली बोला, हाँ, मुझे टेक्निकलिटी पे नहीं हाँ, जाना। तो इसमें जैसे कि आप ये समझो कि जैसे वो आपसे इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि आपका बैकग्राउंड है, कोई आपसे टैक्सेशन का तो ही पूछ रहा है। अगर आप बीकॉम होते तो टैक्सेशन का पूछता, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग होते तो उससे कोई मशीन के बारे में पूछता ना। तो ये नॉलेज मेरे को थोड़ा कम लगा। तो आप ये देखना कि जैसे IT है तो गवर्नेंस में IT कहाँ यूज़ होता है। दूसरा आप ये देखना कि IT के बेसिक कॉमन यूज़ क्या क्या है, कॉमन यूज़ जो हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, तो ये सब आप समझना, ठीक है ना। ठीक है सर। एक मोमेंट में मुझे ये लगा आप फोर्सफुली तो नहीं आई थी यहाँ, नहीं, कम बाई चॉइस। हाँ। ओके, एक मोमेंट पे ऐसे बहुत लग रहा था मुझे कि जब ओपिनियन से बात कर रही थी कि यार क्या नहीं, इससे क्या वो पूरी इंटरव्यू मेरा है, मुझे कौन फोर्स करेगा। उस टाइप से थोड़ा सा हो गई थी जो सीरियस थी कि सर के बाद आप थोड़ा सा और फ्री हो गई थी, बट वो एक मोमेंट तो ऐसा नहीं था। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अदरवाइज मैं ये देखा कि
है मतलब यू हैव सब्सटेंस, कॉन्फिडेंस तो हाँ है। यू हैव सब्सटेंस, आसानी से कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट करता है आपका। प्लस एक और चीज है ऐसे ना, जैसे भी जो हमने मॉर्निंग से नहीं देखा, फर्स्ट टाइम इनके में देखा, शी हैज गिवन फ्यू एग्जांपल वही एंड दैट वाज अ एक्ट, Yes. इट वाज अ एक्ट, तो वो हमने मॉर्निंग में किसी कैंडिडेट में नहीं देखा, तो एग्जाम्पल दिया वो अच्छा है। आपने इवन मतलब ब्लॉकचेन को भी जिस तरह से समझाया है तो गुड, मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आप बहुत अच्छा समझाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, इतना आप उस लेवल तक जा पाओगे कि एकदम बेसिक पर But your attempt was there. attempt was very I must appreciate। इवन वायरस वाला जो था आपने पूरा कंप्लीटली रिलेट किया और कहीं ऐसा नहीं इरिटेट होके छोड़ नहीं दिया कि कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो मुझे, which was very good to connect it रहिए, will help। I think you should do very well, but engage रहिए पूरा टाइम। और सर मेरे को एक क्वेश्चन है कि लाइक लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे सपोज इंग्लिश और गुजराती कुछ डिफरेंस होता है, रिजल्ट के अंदर वो डिफरेंस आता है, बिल्कुल नहीं, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस, हाँ। इसलिए मैं पूछ रही हूँ। बिल्कुल लैंग्वेज का कोई रिटर्न में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब लोग को कंसेप्ट ऐसा है कि हाँ। इंग्लिश मीडियम का नहीं, मैंने अच्छा से है। बहुत सुना है, बिकॉज मैंने पहले ट्राई किया इंग्लिश में देने का, नहीं, लेकिन नहीं। कुछ ऐसा होता नहीं, इमोशन क्वेश्चन होता है, वो तुम इंग्लिश में इतना अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, जैसे गुजराती में हाँ तो गुजराती में करो ना, बेस्ट। मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल नहीं, सबसे बेस्ट गुजराती में करो, बट whichever language you are comfortable। तो मैं मदर टंग इज गुजराती, मेरे को क्या एक्सपीरियंस में थोड़ा इंग्लिश में आदत हो चुकी थी, लेकिन अब से कुछ बातें ना वो टेक्निकल इंग्लिश तुम समझा सकते हो, हाँ। लेकिन जब इमोशन वाला क्वेश्चन आता वो है तब गुजराती में जहाँ तक हो सके गुजराती में। कम्युनिकेशन कितना भी मतलब कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ है ना, भाषा यहाँ पे देखिए आपका लैंग्वेज का पेपर, इंग्लिश का पेपर में भी पास किया है आपने, हाँ। और गुजराती का पेपर भी पास किया है, तो वो हमको जानने की जरूरत नहीं है। अब अच्छा इंग्लिश बोल दोगे और मेरी तरफ देखोगी नहीं तो मैं तो जीरो ही देना। हाँ। हाँ, वो तो कम्युनिकेशन अच्छा कुछ एक जगह बड़ा इंटरेस्टिंग आपने कहा जहाँ मानस रहा और करप्शन हो गई होगा। मानस रहे हाँ मानस रहे समझ गया मैं। नहीं, मतलब हम पूरा करप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते। Because yes, it is हाँ, true. Realistic is your realistic. मानस रहा corruption। Thank you so much. Thank you.